جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے جلال کے لیے ہے. اس کے جلال کے لیے زوردار تعلیم. ہم 1 منٹ کے لیے اپنے گھٹنوں پہ ہو جائیں گے اور اپنے گھٹنوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کر دیں گے، خداوند کے جلال کے لیے تیار کر دیں گے تاکہ دشمن کا کوئی وار ہمیں چرا نہ سکے. ہم جو بھی حاصل کریں اس کے کلام کے بیج کو جو ہماری زندگی میں بویا جائے وہ ابلیس وہ وار نہ کرے اور وہ ہم سے چھین کے نہ لے جائے. اسی لیے ہم اپنے پورے دھیان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنے باڈی کے سارے اعضاء کو اس کے لہو میں ڈپ کر دیجیے. ہاللیلویا. ہماری بات تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی. ہماری بات تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی. آئے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میں آج کے دن اپنے پورے لوگوں میں جو خداوند چرچ میں ہم سب بیٹھے ہیں اور گھٹنوں پر ہیں اور ہمارے اعضاء، ہماری باڈی، ہماری روح اور ہمارا جسم اور ہمارا خون اور ہمارا دل اور ہمارا دھیان سب تیری طرف لگ جائے تاکہ ابلیس کی کوئی طاقت ہمیں چھیننے نہ پائے. ہم سب تیرے روح میں ڈپ ہیں، ہم تیرے لہو میں چھپ گئے ہیں، ہم تیرے لہو میں ڈپ ہو گئے ہیں اور روح القدس کا گہرا مسا ہم پر چھا گیا ہے. یہ ایسا مسا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ مسا ہمیں آزاد کرے گا، یہ مسا ہمیں بزرگی دے گا، یہ مسا ہمیں قوت دے گا، یہ مسا ہمیں تازگی دے گا اور آج نیا موسم ہو جائے گا، نیا کمپلین نکل جائیں گی، نیا ہی سب کچھ ہو جائے گا. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو نئی ہو گئی. آمین آمین آمین. خداوند اس کا شکر ہے، خدا باپ کا شکر ہے، یسوع ناصری کا شکر ہے جس نے آج یہ دن، یہ وقت اور یہ گھڑی اور یہ لمحہ ہماری زندگی میں بخش دیا. آپ لائے نہیں گئے ہو، آپ بلائے گئے ہو. آپ کو مسیح یسوع نے یہاں بلایا ہے اور اس کا کوئی خاص مقصد ہے آپ کی زندگی کے لیے. جو کچھ بھی آپ آج حاصل کریں گے وہ آپ کی زندگی کے لیے ہی ضروری ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو جو اس کے بلائے گئے ہیں، جو اس کے برگزیدہ ہیں، وہ آج یہ کلام لے کر جائیں اور اب یہ کلام کوئی چھیننے نہ پائے. اسی لیے ہم نے اپنے ہاتھوں کو بھی خداوند کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اپنے پوری باڈی کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیا ہے تاکہ ابلیس چرا نہ سکے. کیونکہ یہ ایسا بیج ہے جو ہماری زندگیوں میں اترتا ہے اور ہمیں نیا کر دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. فادرز ڈے، باپ کا دن، حقیقی باپ کا دن. آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے متی 6 باب اور اس کی 9 آیت. جب شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا تو یسوع نے بھی جو لفظ بولا، اے باپ، آئے ہمارے باپ، اس نے اپنے باپ کو یاد کیا اور اس نے کہا آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی. ہم سب اس دعا کو پڑھیں گے آج. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی.
हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदावन के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां। खुदावन को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। कभी किसी बेटे ने ये नहीं कहा कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ, लेकिन सिर्फ यीशु ने कहा कि मैं बाप में हूँ और मेरा बाप मुझ में है। ये सब कुछ यीशु ही कह सकता है। जब हम पैदाइश की किताब खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुबश करती है। तब भी खुदा मौजूद, तभी बाप, तभी उसकी रूह, ये तीनों चीज़ें तब भी मौजूद थी। खुदावन के कलाम के लिए उसका शुक्र करती हैं कि उसने हमारी फिक्र की। हम अपने रूहानी बाप को देखते हैं कि वो कैसा था। हमें अपनी ज़िंदगियों में जब उसको टेस्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा खुदा, हमारा बाप कैसा है। हमारा बाप वफादार बाप है। उसने इब्राहिम से जो वादे किए उसने पूरे किए। उसने इब्राहिम की नस्ल को आसमान के सितारों और ज़मीन की रेत से भी ज़्यादा बनाया और उसको एक वतन दिया। मूसा के साथ जो वादे किए वो खुदा ने पूरे किए। यशुआ के साथ जो वादे किए वो खुदा ने पूरे किए। मैं तुम्हारे लिए मुनज्जी भेजूंगा, उसने भेजा। खुदावन ने जब भी हमसे वादा किया है, खुदा ने वो वादा पूरा किया है। खुदा बाप की तरफ से निगाह करें और अपने दुनियावी माँ बाप की तरफ भी निगाह करें। अपने माहौल को देखें, अपने बच्चों के अंदर देखें, क्या उनके अंदर वफादारी है, क्या उनके अंदर बाप है, क्या उनके अंदर यीशु का बेटा है, क्या उनके अंदर रूह कुदस है। हमें ये सारी चीज़ें अपने औलाद में भी देखनी हैं। एक बाप के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, ड्रिंकर नहीं, ना ही कोई ऐसा दुनियावी जो उसके अंदर वो ऐसे काम हो जो खुदावंद को पसंद नहीं। ऐसे काम खुदा को पसंद नहीं। हम हमेशा ही चाहेंगे कि हमारा जो बाप है वो प्रेयर लीडर हो। हमारा जो बाप है उसके अंदर टीचिंग बाइबल सिखाने की ताकत हो। हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारा बाप ऐसा लीडर हो जो हमें कलाम सिखा सके, खुदा के कामों को बयान कर सके और खुदा के साथ चलता हो। कि बाप को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब लीडर बनना होता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। जब उसको लीडरशिप के साथ बाइबल सिखानी पड़ती है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनियावी होती हैं और उनको छोड़ना पड़ता है, और जो पीछे चीज़ें छूट जाती हैं उनका कभी अफसोस नहीं करता। एक बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी राह के लिए सोचता है। कलाम में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप तुम्हें रूह कुदस क्यों ना देगा। हालेलुया। वो हमें रूह कुदस देगा, क्योंकि रूह कुदस सबके लिए नहीं, सबको नहीं बख्शा जाता। वही जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो अच्छे बाप बनते हैं और अपने ख़ानदान को बचाते हैं। मेरे सामने एक पिक्चर है। ऐसे बाप हैं जो बाइबल में जिनका जिक्र है वह है नूह। क्योंकि नूह एक ऐसा बाप था जो खुदावंद के साथ चलता था, वो वफादार था। उसकी उम्र 950 साल की थी और खुदा ने उसको ये हुक्म दिया कि तो एक कश्ती बना। उसको कश्ती बनाने में 120 साल लगे। उसने खुदावंद से ये नहीं कहा खुदावंद ये कैसे होगा, क्यों होगा। उसने कोई वजह नहीं पूछी, उसने वफादारी दिखाई। क्योंकि नूह के अंदर सब्र था, नूह के अंदर खुदा काम कर रहा था। वो डिपेंडेंस था कि वो खुदा की बात को सुन रहा था।
नूह रास्तबाज था, वो शिप बिल्डर था, वो फार्मर भी था, वो एग्रीकल्चर से भी वाकिफ था, वो टीचर भी था, वो खुदा के रेवोल्यूशन को भी जानता था। वो जानता था कि जो खुदा का मंसूबा है वो कोई ऐसा मंसूबा है जो वो नहीं जानता। जब रूए ज़मीन पर इतनी गुनाह बढ़ गए तो खुदा ने जब देखा कि रूए ज़मीन पर बहुत गुनाह है, तब बारिश का नामो निशान नहीं था। लेकिन खुदा को पता था कि खुदा ने नूह को कैसे बचाना है। अगर नूह एक अच्छा बाप नहीं होता तो वो अपनी बीवी को और अपने ख़ानदान को, अपनी औलाद को नहीं बचा सकता था। लेकिन नूह का ये पॉजिटिव किरदार था जो खुदा को बहुत पसंद आया। नूह खुदा के साथ चलता तो उसकी बीवी भी खुदा के साथ चलती, उसकी औलाद भी खुदा के साथ चलती, और खुदावंद को ये घराना पसंद आया। जो उसके साथ चलते हैं खुदावंद उनको बचा लेता है। वो अपनी ख़ानदान के लिए फ़िक्रमंद हो गया और उसने अपने ख़ानदान के लिए बोट नहीं, उसने पहले से एक नजात की बोट तैयार कर दी हुई थी, ज़िंदगी की बोट तैयार कर दी थी। इस तूफ़ान से पहले नूह ने अपने ख़ानदान को खुदा की राह पे चलाया हुआ था। वो दिन रात दुआ करते, रोज़े में ठहरते और खुदावंद की राह पर चलते। तभी खुदावंद ने उनको उस तूफ़ान से भी बचाया और उसके लिए कहा कि तू एक कश्ती तैयार कर, क्योंकि मैं तुझे बचाऊँगा। उस बारिश से, उस तूफ़ान से मैं तुझे बचाऊँगा। और खुदावंद के लोग उस कश्ती में सवार हुए और वो घराना नजात पा गया, वो घराना बच गया। वो बाप जो लीडर था उसने अपने बच्चों को, अपने घराने को बचा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सामने एक और बाप की पिक्चर है जिसमें एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं। जो मुशरफ बेटे की कहानी है जो कि लूका 15 बाब और उसकी 11 आयत में है। वो ऐसा बेटा था जो सोचता था कि मैंने अपने बाप के बगैर सब कुछ कर सकता हूँ। उसने अपने बाप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि जो भी मेरा हिस्सा है वो तो मुझे दे दे, और उसके बाप ने उसको दे दिया। और उस बेटे ने क्या किया, अपने बाप के बगैर अपने बाप को तंग किया और उसने उसके हिस्से में से हिस्सा लेकर वो चला गया और उसने अपना सारा माल असबाब उजाड़ दिया। और जब उसके पास कुछ ना था, खुराक नहीं थी उसके पास खाने के लिए, तो वो क्या कर रहा था, वो सूअर जो फलियाँ खाते थे वो ही फलियाँ वो खा रहा था। फिर उसको याद आया कि मेरे घर में तो जो नौकर हैं वो इससे ज़्यादा अच्छी खुराक खाते हैं। तब उसको याद आया और उसने कहा कि मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा, उसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैंने अपने बाप का दिल तोड़ा है। और वो फ़ौरन माफ़ी मांगने के लिए अपने बाप की तरफ लौटा और क्या देखता है कि वो बाप उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा है। वो खड़ा है उसके इंतज़ार के लिए कि ये तो मेरा बेटा है। आप जानते हैं कि उसने अपने बेटे को दूर से ही पहचान लिया था। उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये तो वापस आ गया है। उसने हाथ बढ़ाया और अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने कहा कि जो मर गया था अब जिंदा हुआ है, जो खो गया था अब मिला है। उसके बाप ने कोई इससे सवाल नहीं किया कि जो मैंने तुझे मार दिया तूने उड़ा दिया, तूने तो मैंने समझाया था कि ऐसे ना कर। लेकिन उसके बाप ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, एक अच्छा नमूना दिया। उसने उसको माफ़ करके उसको गले लगा लिया। ये एक पॉजिटिव बाप की पिक्चर है कि उसने अपने बच्चे को माफ़ किया। मैं ये समझती हूँ कि उसका बाप उसका रोज़ ही इंतज़ार करता होगा, तभी तो जब उसका बेटा आया तो वो वहीं पे खड़ा उसको मिला। उसने अपने बाप को देखा और वो ज़ार ज़ार रोया और माफ़ी मांगी, और उसके बाप ने उसके लिए एक बछड़े को ज़िबा किया और ईद की। उसके बाप के लिए वो ईद का दिन था। ये ऐसे ईद है जैसे एक औरत के पास 100 सिक्के थे, उसका एक सिक्का गुम गया और उसको ढूंढने लगी। जब वो मिल गया तो वो नहायत खुश थी। ये उसी तरह ही है जिस तरह 100 भेड़ों में से एक भेड़ गुम जाती है, लेकिन जब यीशु अपनी उस भेड़ को ढूंढता है और वो भेड़ उसको मिल जाती है तो वो खुशी करता है। इसी तरह हम भी जब खुदा के घर से भटक जाते हैं तो वो हमारे लिए इंतज़ार करता है कि आज भी मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। हमें इसकी बेकदरी नहीं करनी है, अपने बाप की हमें
بے قدری نہیں کرنی ہے، کیونکہ خداوند حلیم ہے، وہ ترس کھاتا ہے، وہ رو بھی ہمارے لیے روز کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے مصرف بیٹے کا باپ اپنے بیٹے کے لیے کھڑا تھا، اس نے کہا جو بیٹا کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے۔ ایسے ہی جب ایک گناہگار اپنے گناہوں سے پھر کر توبہ کرتا ہے اور خدا کی بادشاہی کو پا لیتا ہے، اسی طرح آسمان پر بیشتر فرشتے خوشی مناتے ہیں، تب وہ بھی دن خدا باپ کے لیے نہایت خوشی کا ہوتا ہے۔ جاپان کے بلی گرام کی ایک سٹوری جو مجھے پتا ہے کہ اس کی بیٹی کی ایک شادی ہوئی، اس کا ڈیورس ہو گیا اور وہ سیکنڈ شادی کے لیے بھی پریشان تھی۔ اس نے اپنے باپ سے مشورہ نہیں کیا، اس کے باپ نے اس کو منع کیا کہ بیٹی ابھی تمہارا زخم نیا ہے، ابھی تم اس کام میں نہ پڑو، رک جاؤ، ویٹ کرو، دعا کرو، خدا کا جو منصوبہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ لیکن اس نے اپنے باپ کی نہیں مانی۔ لیکن یقین جانے جب اس نے اپنے باپ کی بات کو رد کیا تو کیا ہوتا ہے کہ 24 آورس میں اس نے اپنے گھر کو دوبارہ سے برباد ہوتا ہوا دیکھا، اور تبھی وہ اپنے باپ کے پاس لوٹی۔ اس کا باپ دروازے پہ ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بلی گرام نے اس کو سمجھایا کہ بیٹی تو ایسے نہ کر۔ اس کے باپ کو اپنی بیٹی کا انتظار تھا اور اس کے باپ نے اس کو معاف کر دیا۔ بلی گرام اپنے باپ کے پاس واپس آ گئی اور جس طرح اس کے باپ نے پھر چاہا اس نے اپنی زندگی ویسے بسر کی، کیونکہ جب ہم اپنے بزرگوں اور بڑوں کی صلاح نہیں لیتے ہیں تبھی ہمیں زندگی میں خطرہ اور ایسے نقصان ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ ہمیں دعا میں کھڑے رہنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں ہر وقت اچھے رستوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ دعا ہماری قوت ہے، ہمیں ہر وقت اپنے خدا کی ضرورت ہے۔ میرے پاس ایک اور بھی پکچر ہے بائبل میں، ایک ایسے باپ کی جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ داؤد خدا کا سب سے قریب، خدا کے نزدیک، اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بھی نصیحت کی، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان کے پاؤں دھونے ہیں، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی آواز سننی ہے۔ جب سلیمان اپنے باپ کے پاس بیٹھا تو کلام میں لکھا ہے کہ داؤد بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا بیٹھ میرے پاس۔ سلیمان اپنے باپ کی قدر کرتا تھا، وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آج کل کے باپ کہتے ہیں بیٹا بزنس بہت لاس میں جا رہا ہے تو بزنس کو بڑھائی، لیکن داؤد نے سلیمان سے کہا کہ بیٹا خدا کے کلام کو نہ چھوڑی، خدا کے کلام کو نہ چھوڑی، خداوند کے کلام کو پکڑے رکھ۔ موسیٰ کی جو شریعت ہے، جو خدا کی ہدایت ہے تو مان۔ کلام میں ہم دیکھیں گے پہلا سلاطین اس کا 2 باب ہے کہ داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو کیا سمجھایا۔ اور داؤد مرنے کے نزدیک آئے، داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے۔ اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اس راستہ پر جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو جا اور مردانگی دکھا اور خدا کی ہدایت کو مان اور ان راہوں پر چل جس کے آئین اور اس کے فرمانوں اور اس کی شہادتوں پر عمل کرتا ہے، اور جو کچھ تو کرے جہاں کہیں بھی تو ہو سب تجھے کامیابی نصیب ہوگی۔ خداوند نے اپنے کلام میں اپنے بندہ کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ جب داؤد مرنے کو تھا تو اس نے سلیمان کو کہا کہ بیٹا خدا کی راہ پہ چل، اس کے آئین کو مان، اس کی شریعت کو مان، جو کچھ کلام میں لکھا اس پر عمل کر، تبھی تجھے راہ نصیب ہوگی، اقبال مندی کی، کامیابی کی، تبھی تو تخت پر بیٹھا رہے گا، تبھی تیری جو اولاد ہے اس کے لیے بھی تخت ہوگا اور تیری اولاد بھی حکمران ہوگی۔ جب ایسے بچے ہوتے ہیں، ایسے بیٹے ہوتے
ہوتے ہیں वफादार, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी हुक्मरान ही बनते हैं। खुदावंद उनके लिए सब कुछ करता है जो खुदा के साथ चलते रहते हैं, और खुदावंद कभी भी उनसे पीछे नहीं हटता। खुदावंद को पता होता है। दाऊद ने जब सुलेमान को समझाया तो उसने उसको एक नुस्खा दिया, कामयाबी की राह बताई। हम अपने बच्चों को बताते हैं, बेटा बिजनेस में लॉस हो रहा है, इतने पैसे कम हो रहे हैं, इसे ज़्यादा पैसा बनाना, ये मसला है कि ये मसला सुलझाना। लेकिन उसने सलमान को बताया कि तू खुदावंद के कलाम की तरफ जुड़ा रह, उससे जुड़ा रह और वो तेरे साथ जुड़ा रहेगा। तू जहाँ कहेगा खुदावंद तेरे साथ रहेगा, जो तू बोलेगा खुदावंद तेरे साथ बोलेगा, और खुदावंद उसके साथ था। खुदावंद अपने लोगों के साथ हमेशा होता है। खुदावंद चाहता है कि हम भी अपने आप को उसके साथ जोड़े रखें, और खुदावंद बहुत ऐसे काम करता है जो हम नहीं जानते, लेकिन वक्त आने पर वो हमें जाहिर करता है। खुदावंद हम अपने बाप की बदौलत बताता है, अपनी माँ की बदौलत बताता है कि देखो ये रास्ता चुनना है तुम्हें। हम बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो हम उनको बड़ा टाइम टेबल बताते हैं, बेटा सुबह टाइम पे उठना, स्कूल जाना है, सख्ती करते हैं। लेकिन हमें ये भी करना है कि हमें कलाम के लिए भी बच्चों पर सख्ती करनी है कि बेटा कलाम पढ़ना है, दुआ करनी है, कलाम के बगैर हम नाकाम हो जाएंगे। जो खुदा के साथ चलते हैं खुदा उनके लिए कामयाबियां ही रखता है, और खुदावंद के लोग कहीं भी हों वो कामयाब ही नजर आएंगे आपको। इब्राहिम कामयाब रहा, यशवा कामयाब रहा, मूसा कामयाब रहा, जो भी खुदा के साथ चलते रहे लोग वो कामयाब थे। खुदावंद का शुक्र है कि वो अपने लोगों को सिखाता है। जो अपने माँ बाप का मशवरा नहीं लेते हैं और कहते हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनते हैं, उनके साथ भी अच्छा नहीं होता। खुदावंद उनसे नाखुश होता है। जॉर्ज बुश उसका बेटा वो भी एक प्रेसिडेंट ही बना, क्योंकि वो अपने बाप की सलाह लेता, अपने बाप से मशवरा करता। 1989 में वो प्रेसिडेंट बना था, और फिर उसका बेटा 2001 से 2009 तक प्रेसिडेंट रहा। ये वो लोग हैं जो अपने बाप के साथ सलाह करते हैं, अपने बाप के साथ मशवरा करते हैं। ऐसे बच्चे कामयाब होकर कामयाबियां ही उनके कदम चूमती हैं। बिल क्लिंटन की बेटी वो एग्रीकल्चर में, विमेंस में जो भी काम वो करती उसमें कामयाब रहती। क्यों? कि बिल क्लिंटन की बेटी अपने बाप के साथ मशवरा करती थी, सलाह लेती थी और कहती कि बाप तू मुझे बता ये कैसे काम करना है, इसको कैसे बढ़ाना है, और वो कामयाब रही। इसी तरह जॉर्ज बुश भी ऐसे थे। उन्होंने भी अपने बेटे को, एक वो सीनियर थे और उनका बेटा जूनियर था, तो उन्होंने अपने बेटे को भी जो भी समझाना, उनके बेटे ने उनकी बात को मानना, और खुदावंद ने उनको भी बरकत दी। अपने बाप के साथ वो भी टच में रहा। जब खुदावंद के साथ हम चलते रहते हैं तो वो हमें सलाहकारों की कसरत से भर देता है। हम कहीं भी हों, खुदावंद हमारे लिए ऐसे लोग पैदा कर देता है कि जो हमें सलाह देते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपने बाप से सलाह लेंगे, से पूछना कि बाप तो क्या चाहता है। यसु ने भी अपने बाप से ही बात की हमेशा, कि बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी दुआ सुन ली। यसु भी अपने बाप से बात करता था। कई दफ़ा रात की घड़ी में वो अपने बाप से बातें करता और दुआ करता, और उसने अपने बाप से ही मांगा। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। उसके शागिर्द ये सुनकर हैरान होते थे कि ये कैसी बातें हैं जो तमसीलों में कहता है, लेकिन उसके लोग जो उसे मांगते हैं वो उनको दे देता है। राह और जिंदगी मैं हूँ, मसीह के मुंह की बात जिनको कोई इंसान रद्द नहीं कर सकता। ज़मीन और आसमान टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तुम मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। जो यसु को जान लेते हैं वो बाप को जान लेते हैं, और जो बाप को जान लेते हैं वो यसु को जान लेते हैं।
यूहन्ना 14 बाब में भी लिखा है, यूहन्ना 28 बाब में भी लिखा है, यूहन्ना 11 बाब 42 आयत में लिखा है, यूहन्ना 10 बाब 18 आयत में लिखा है, यूहन्ना 3 बाब 25 आयत में लिखा है, यूहन्ना 15 बाब 1 आयत और यूहन्ना 16 बाब 25 आयत में भी। यूहन्ना की जो किताब है वो बाप के नाम से भरी पड़ी है। आप हवाले को खोलें, आपको हर एक आयत में यही होगा कि यीशु ने अपने बाप की मर्जी को ही जाना, उसने बाप से ही बात की और उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो सलीब पे भी अपने बाप से ही बात कर रहा था। अमेरिका की एक वॉर थी, उसमें तमाम लोग मर गए, जो फैमिलीज बच गई उनको एक इदारे ने अडॉप्ट कर लिया, ऑर्फन्स अदारा कायम हुआ, जिसके लिए बहुत बड़ी उन्होंने फंड्स किया और उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्फन्स हैं जिनके माँ बाप मर गए हैं वो यहाँ से खाना लेके जा सकते हैं, उनके लिए खाना पीना कपड़ा ज़रूरत की जितनी भी अशिया थी उनको मिलती थी। और वहाँ पर जितने भी ऑर्फन्स बच्चे हैं वो वहाँ पर आते, वो खाना खाते और चले जाते और उनको रिहाइश के लिए जगह मिली हुई थी। एक बाप एक बेटी के साथ वहाँ पर आ गया। वो बाप बहुत ही सूखा हुआ पतला सा कमज़ोर सा था और उसने अपनी बेटी को हाथ में पकड़ा और वो उस एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला गया और उनसे कहा कि हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या आप मेरी बेटी को खाने के लिए दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं इसका बाप हूँ। कहते कि जब आप जिंदा हैं तो हम आपकी बच्ची को खाना नहीं दे सकते। उसने कहा कि क्यों? उसने कहा कि लिखा है कि हमारी जो लॉज में ये है कि जो माँ और बाप के बगैर बच्चे हैं उनको खाना दिया जाएगा, सो प्लीज़ आप जा सकते हैं। उसने फिर कहा कि आप मेरी बेटी को खाने के लिए नहीं देंगे? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, आप चले जाएं। तो बाप ने सर झुकाकर कहा कि मैं कोई इंतज़ाम करता हूँ, आई विल मैनेज। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, उसकी आंसुओं की तरफ देखा और कहा कि आई विल मैनेज। वो खामोशी से चला गया और दरवाज़ा बंद करके अपने गले में रस्सी डालकर वो मर गया। और जब उसने अपने आप को मार लिया तो उसकी बेटी को खाने के लिए मिला, पहनने के लिए मिला, रिहाइश के लिए मिला। उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसकी सहूलतों के लिए अपनी जान दे दी। वो रोया होगा कि मेरी बेटी मेरे बगैर क्या करेगी, लेकिन उसको अपनी जान देना ज़रूरी था। उसने अपनी बच्ची के लिए अपनी जान दे दी, अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने जान दे दी। इसी तरह यायर जब उसकी बेटी मर गई तो वो परेशान हो गया, वो यरदन के किनारे खड़ा रहा और उसने देखा कि यीशु यहाँ से गुजरेगा और वो मेरी बेटी को जिंदा कर देगा। तब उसने कहा यीशु मेरी बेटी को जिंदा कर, वो मर गई है। तो यीशु ने उस आकर उसकी बेटी को जिंदा किया। वो बाप परेशान हो गया था अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी मर गई है। इस तरह बाप को जब तकलीफ पहुंचती है तो वो अपनी रात के लिए कुछ भी कर गुजरता है। इसी तरह जब वो अमेरिकन फंड्स उनके लिए बंद कर दिया गया तो उसने कहा कि आपको खाना नहीं मिलेगा। उस बाप को अपनी बेटी के लिए जान देनी पड़ी और उसकी बेटी के लिए वो खुशियां नसीब हो सकी, वो खाना मिल सका, वो कपड़ा जूता जो भी उसकी जरूरत की जिंदगी थी उसको मिल गई। ऐसे ही हमारे यीशु ने अपनी जान देकर हमें बचाया है। उसने कहा कि मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं अपनी जान देकर तुम्हें बचा लूंगा। और आज उसने सलीब पर जान देकर हमें जिस तरह से बचाया है उसकी बेशकीमत कुर्बानी के लिए शुक्रिया कीजिए। आए अपने आप को झुकाएं और अपने बाप की कुर्बानी पर मत कीजिए। हमारे बाप ने जो रूहानी बाप है उसने सलीब पर जान दे दी है। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हमारे काम ऐसे हैं कि अपने बाप को खुश कर सकें, क्या हमारे काम ऐसे हैं जो रूह कुदुस को खुश कर सकें, क्या हमारी जिंदगियों में खुदावंद का ऐसा काम है, क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे। अपने बाप से कहिए ए बाप मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, ए बाप मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। उसका पल्ला पकड़ लीजिए जिसमें से शिफा निकलती है, उसका पल्ला पकड़ लीजिए जिसमें से हमेशा की जिंदगी निकलती है, उसके हाथ को पकड़ लीजिए
आए अपने घुटनों पर हो जाइए। आज मांग लीजिए खुदावन से, अपने बाप से जो देने की पूरी कुदरत रखता है, क्योंकि उसने अपना फिदिया देकर ही हमें बचाया है। वो चाहता तो ऐसा ना भी करता, लेकिन जब आदम और हवा ने गुनाह किया और वो ऐसी दीवार खड़ी हो गई, उनको बाग एदन से निकाल दिया गया, तो खुदावन को फिक्र पड़ गई थी। खुदावन ने कहा कि ये इंसान जिसको मैंने बनाया है, ये मेरे हाथ की मट्टी से गूंदा हुआ है, इसके अंदर मैंने अपनी जिंदगी का दम फूंका है, ये मेरे हाथ से चला गया, ये मेरे बाग एदन से निकल गया। जो मेरा मकसद था इंसान को बनाने का, वो अधूरा रह गया है। तब यीशु ने क्या किया? अपने बाप से कहा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तब बाप ने उसकी मर्जी को जाना और वही किया जो बाप चाहता था। सलीब पर उसकी जान देनी पड़ी, उसका लहू बहा। जब उसका लहू बहा, उसके खून बहने से वो दीवार गिर गई और वो जो रिश्ता जो बाग एदन से टूटा था वो जुड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने बाप से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज हम अपने बाप के साथ लिंक में हैं। आज हम अपने बाप को याद करें तो वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, फिर उसने अपना रूह कुदस भेज दिया। आज जितने भी हम लोग हैं, अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और अपने बाप से कहिए कि ना तू हमसे जुदा हुई, ना अपना मददगार हमसे अल्लाह करी, क्योंकि जो तेरी कुर्बानी है वो तो बेशकीमत कुर्बानी है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने खुदावन से कह दीजिए, ऐ बाप, हमने जुर्रत की है तुझे बाप कहने की। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम के वसीले से जो हमने बरकत पाई है, उस बरकत को जो हमने रिसीव की है, वो बरकत हमारे अंदर है, बल्कि हम और जिंदगियों में वो बरकत को कन्वर्ट कर सकें। अपने दाहिने हाथ को बढ़ा लीजिए। खुदावन चाहता है कि आज हम अपने बाप से कह दें, ऐ बाप, हमने बाप कहने की जुर्रत की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि खुदा के खादम यहाँ पर आ जाएं और वो दुआ करें। और हमारे रूहानी बाप हैं, और मैं चाहती हूँ कि अपने रूहानी बाप को, उन्होंने हमें संभाला है, उन्होंने हमारी तरबियत की है, इस कलाम को सिखाया है, दिन रात दुआएं की हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ अपने रूहानी बाप की वजह से। मैं अपने रूहानी बाप को छोड़ नहीं सकती, मैं अपने रूहानी बाप को तर्क नहीं कर सकती। वो जिस तरह से हमें तैयार करे हैं, हम अपने रूहानी बाप को तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। फरमाबरदारी बहुत बड़ी चीज है। जब हम फरमाबरदारी कर लेते हैं, 100 कुर्बानियों से बेहतर है, 100 कुर्बानियों से बेहतर है। आए हम जिन्होंने भी खुदावन को कबूल कर लिया है, खुदावन को कबूल कर लिया है, आज जो रह गए हैं वो भी खुदावन को कबूल कर लें। वो अपने बाप से कह दें, ऐ बाप, तू हमारा बागबान है और हम तेरी डालियां हैं। और अपने बाप से कह दीजिए अपने बाप से। हालेलुया, 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 हालेलुया। उससे मिली रहे कि तू सलामत रहेगी और तेरा उससे मिला रहे कि तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। बेटे ने बाप के पास आकर कहा, ऐ बाप, मैंने तेरा और आसमान के खुदा का गुनाह किया है। उसने इकरार किया बेटे ने, और फिर बाप ने दुआ की। इसी तरह अपने पलकों को झुकाए रखिएगा और दिल ही दिल में दुआ कीजिए और इकरार कीजिए, पलकों झुकाए और दुआ कीजिए। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने बाप का गुनाह किया है और इकरार न किया है। सोचिए कि कल परसों या गुजरे हुए लम्हों में आपने बाप का गुनाह किया है और फिर
इकरार नहीं किया और आज वक्त है कि फादर डे के मौका पर आप इकरार करें और आज इस कलाम के वसीले से जो खुदा की खादमत के वसीले से आपकी ज़िंदगी में उतरा है उसके वसीले से आपको अजर मिलने वाला है। अजर देखें, अपनी पलकों को झुकाई रखिएगा और खुदा की बंदी रुबीना से दरख्वास्त करूँगा कि वो बेटी के लिए रब के लिए जिसके वसीले से खुदा मुझसे बोला उसके लिए कलाम उसके लिए दुआ करें। प्रेज़ दुआ में दें। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। ज़िंदगी के खालिक और मालिक यीशु जी, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए बापा आसमानी कि तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरी बारगाह में मौजूद हैं बापा आसमानी, तुझसे बात करने के लिए बापा आसमानी, तुझे अपना हाल सुनाने के लिए बापा आसमानी, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारा आसमानी बाप है, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं बापा आसमानी। तूने हमें कीमत से खरीदा है बापा आसमानी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई किसी के लिए जान नहीं देता, कोई किसी के लिए मार नहीं खाता बापा आसमानी, लेकिन तू बाप है बापा आसमानी। तूने हमारे लिए सब कुछ सहा बापा आसमानी ताकि हम आजाद हो बापा आसमानी। तू हमारा हकीकी बाप है बापा आसमानी। तभी तू कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ बापा आसमानी, हम मांगते हैं बापा आसमानी तुझसे, तू हमें देता है बापा आसमानी। और जब हमारी दुआ तेरे हुजूर नहीं पहुंचती तो उसमें बापा आसमानी हम बापा आसमानी कोताही बरतते हैं बापा आसमानी, वो हम में कमी है बापा आसमानी, क्योंकि तू तो देने के लिए तैयार है बापा आसमानी। हाँ बापा आसमानी, तेरा आसमान नेक और बद दोनों पर है बापा आसमानी। लेकिन बापा आसमानी तू ये भी कहता है कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे गुनाहों से नफरत करता हूँ। बापा आसमानी, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बापा आसमानी कि तू हमारी दुआओं को सुनता है बापा आसमानी। हर सुबह बापा आसमानी तो अपनी बंद मुट्ठी खोल कर हमें देता है बापा आसमानी। तेरी तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए बापा आसमानी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बापा आसमानी। जिंदगी की नेमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बापा आसमानी। बाप इन सांसों के लिए बापा आसमानी जो तू हमें मुफ्त में देता है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए बापा आसमानी, रोज की रोटी के लिए तेरा हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस रूहानी गज़ा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरी बंदी के वसीले से हमने तेरे कलाम को सुना बापा आसमानी और अपने आप को देखा बापा आसमानी। हम कमजोर हैं ए बापा आसमानी, तो अपनी बेटी को और जोर बख्श बापा आसमानी और इस्तेमाल कर अपने नाम अपने जलाल के लिए बापा आसमानी। जहाँ तेरी बेटी जॉब करती है बापा आसमानी, वहाँ इस हॉस्पिटल में भी बापा आसमानी तो अपनी बेटी को इस्तेमाल कर बापा आसमानी, उसके हाथों को बरकत दे बापा आसमानी। जब ये पेशेंट्स को छुए बापा आसमानी तो पेशेंट बापा आसमानी शिफा पाए बापा आसमानी, यीशु के नाम से बापा आसमानी, क्योंकि तूने हमें बनाया है, तूने हमें जीती जान किया है बापा आसमानी। और तू हम तेरे बेटे और बेटियां हैं बापा आसमानी, तो हमसे चाहता है बापा आसमानी कि हम बापा आसमानी तुझ में समा जाएं बापा आसमानी और तू हम में बापा आसमानी, ताकि हम नजर आए बापा आसमानी कि हम तेरे हैं बापा आसमानी। हमारा उठना बैठना चलना फिरना बापा आसमानी तेरी मर्जी के मुआफिक हो बापा आसमानी। बापा आसमानी तू बड़ा रहीम है बापा आसमानी, तू रहम करता है बापा आसमानी। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बापा आसमानी कि तू हर दम बापा आसमानी हमारे लिए बेदार रहता है बापा आसमानी। रात के किसी भी पहर में बापा आसमानी तुझे पुकारें तो आना मौजूद होता है बापा आसमानी, क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है बापा आसमानी। तूने फरमाया अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हाँ बापा आसमानी, ये सच है बापा आसमानी कि तू हमारी फिक्रों को दूर करता है बापा आसमानी, तू हमारे गमों को दूर करता है, तू हमें तसल्ली देता है बापा आसमानी। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे कलाम में तसल्ली है बापा आसमानी। बापा आसमानी एक बार फिर से बापा आसमानी इन तमाम जिंदगियों के लिए जो तेरी हजूरी में मौजूद है बापा आसमानी, इन सबों के लिए
तेरी बरकत चाहते हैं बाप आसमानी, हाथ बढ़ाकर छू बाप आसमानी और छू कर बरकत दे बाप आसमानी। तेरी बेटी के लिए और जोर चाहती हूँ बाप आसमानी, और बरकत दे बाप आसमानी, ताकि और ज्यादा तुझ में ढले बाप आसमानी, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता चला जाए बाप आसमानी। अपने पास्टर के लिए बाप आसमानी, जो कि बाप आसमानी उनको लेकर चलता है, वो और खोई हुई भेड़ों के लिए वैसे बरकत ठहरे बाप आसमानी, और कलीसिया के लिए बाप आसमानी चाहते हैं इसकी ग्रोथ और बढ़े बाप आसमानी, ताकि वो जिंदगियां जो बाप आसमानी तुझसे दूर है बाप आसमानी, वो यहाँ आए बाप आसमानी, तेरे कलाम को सुने बाप आसमानी, तुझे जाने बाप आसमानी, उनकी जिंदगी तब्दील हो बाप आसमानी, और वो औरों के लिए इस्तेमाल हो बाप आसमानी। ए बाप आसमानी, बड़ी रहनुमाई कर, मदद कर, हिफाजत कर बाप आसमानी। सब कुछ मांगती हूँ तेरे ही मीठे जलाली और बाबरकत नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अब जैसे कि कलाम में लिखा, जहां मेरे नाम पे दो या